Good morning. Good morning, dear students. Now, today we will see the experiment number 6, that is decision making using if and if else structure and conditional operator. For that, we see today find the greatest of the three numbers using and find given character is vowels or not. From this practical or experimental, we expected to develop the following skill for the industry identified competency to develop a C program to solve the broad-based computer related problems by performing the following steps, that is write algorithm for given problem, then write and draw the flow chart for a given algorithm, and develop a C program using variable, constant and arithmetic expressions. And second last, that is debug the programs, and fifth one, execute the simple C program using Turbo C and GCC compiler. These are the 5 steps you want to perform, and these 5 skill must be know to perform the practical. Okay, first one is the algorithm, second flow chart, third program, and debug the program, is compile the program, and fifth one is the execute the program. Okay, now we will see today's experiment related operators. For this experiment, we require the logical or Boolean operators and conditional operators. So first we will see the logical or Boolean operator. What is logical operator? The operands may be constant, variables or expression, and the expression that combines two or more expression in terms as a logical expression. Logical expression means what? Here we combine the two expressions or two variables or two constants, and we make one more expression, we make third expression in terms as a logical expression. Okay, for that we use the operators, that is AND operator, ampersand operator, then OR operator and NOT operator. This is the symbol for AND, this is the symbol for OR operator, and this is the symbol for NOT operator. Now we will see the meaning of NOT operator. Logical NOT. Logical NOT is a unary operator and other two are binary operators. And OR are the logical binary operator, and this is the unary operator. NOT is the unary operator. Unary operator means only one operand, only one expression is there, and binary operator means two operands required. Okay. Now AND gives result true if both the conditions are true, otherwise result is false. AND में क्या होता है? In AND operator gives the result true if both conditions are true. अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकेंड एक्सप्रेशन, both expressions are true, then logical AND gives the result is true. Otherwise result is false. Logical AND gives result false if both the condition false, otherwise result is logical OR means what? Here only any one of them is true, then expression, total expression is true, and both are false, then the result is true. ये लॉजिकल ऑपरेशन में होता है. तो दो एक्सप्रेशन आप चेक कर सकते हो, और दो एक्सप्रेशन में से अगर दोनों एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो आपका एंड ऑपरेटर है,
लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, और दो एक्सप्रेशन आप ले रहे हो और कंपेयर चेक कर रहे हो बाय यूजिंग दिस एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। अगर आप और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं और दोनों एक्सप्रेशन both expressions are false, then the expression is true रहेगा। ठीक है, तो अभी जो हमने यहाँ पर देखा हुआ है ये देख लेते हैं in form of a program। Now we will see one example to program to find the greatest of three numbers using if else statement। if else स्टेटमेंट्स लेके हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। दिस इज आवर द प्रोग्राम वांट टू डिस्प्ले implement। For that we take three variables, that is number 1, number 2 and number 3। we require three variables, so first we declare these three numbers and printf enter the three different numbers and that values will be scanned here, that is number 1, number 2 and number 3। here by using scanf function we will get the three numbers value। here the data type of these number is a float type। we take here a floating type of values, means point values we considered here and used here in our program। so we used here percent LF means long float, percent LF means long float for n2 variable। this first n1 variable, second LF for n2 variable and third LF for n3 variable। okay, this is the scanner and after reading the variables three point values, then we will compare it which one is the greater। now first we will check n1 is greater than n2 and n3। अगर आपको चेक करना है n1 ये n2 and n3 से ग्रेटर वैल्यू है। ओके, तो एक चेक करने के लिए आप यहाँ पर लिख रहे हो if n1 ग्रेटर देन और इक्वल टू n2, और हमें और भी चेक करना पड़ेगा n1 n2 से तो ग्रेटर होगा, इट इज ओके। अगेन वी चेक n1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n3, n3 से भी वो इक्वल और ग्रेटर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर ऐसे लिखा, ये कंडीशन लिखी if n1 is greater than both n2 and n3 then n1 is largest। ये हमारा एक्सप्रेशन हुआ। तो यहाँ पे दो एक्सप्रेशन हमने चेक किए एंड बाय यूजिंग एंड ऑपरेटर वी कंपेयर दिस, we check these two conditions, that is two expressions। when both expressions are true then n1 this total expression is true, it means n1 is greater। so now we display here printf n1 is the greatest number। so %2f for n1 value, the specifier of n1 is the %f and we display two decimal points only। so we write here 0.2f means showing the result in form of two decimal point, 0.2f। 0.2f is the largest number and n1 we display, n1 में जो भी वैल्यू आई है एंटर की थी वो वैल्यू हमने यहाँ पे डिस्प्ले की, that is the greatest number। now we check the second variable, that is n2। अभी n2 ग्रेटर है नहीं है ये देखना है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, n2 हमें कंपेयर करना पड़ेगा n1 से एंड n3 से। तो हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करके कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे एक्सप्रेशन राइट कर सकते हैं ये देख लो। तो n2 ग्रेटर देन इक्वल टू n1, दिस कंडीशन इज अ ट्रू एंड n2 अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू n3। n2 जो है n1 से ग्रेटर n3 से ग्रेटर होगा इफ इट इज ट्रू,
both expressions are true, then we will display the printf n2 is the largest number. तो n2 में जो भी वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो डिस्प्ले करने के लिए हमने यहाँ पे %.2f लिखा, इज द लार्जेस्ट नंबर, ऐसे स्क्रीन पे एक मैसेज आ जाएगा। इन दिस वे वी फाइंड द सेकेंड नंबर। नाउ we will check the third one, that is n3 is greater than n1 and n2. So for that we write here two expression by using the AND operator. तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन लिखा, n3 is greater than equal to n1 and n3 greater than equal to n2. It means n3 जो है वो greater than equal to n1 है कि नहीं, and n3 जो है वो greater than n2 है कि नहीं, ये हमें यहाँ पे देखना है। Okay, when these two expressions are true, means this is the first expression. If it is true and this is the second expression, if it is a true, then we said that if n3 is greater than both n1 and n2, that is n3 is the largest. तो ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करने के बाद हम कह सकते हैं कि n3 is greater than remaining two numbers. तो हमें वो प्रिंट भी करना है, तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं printf n3 is the largest number. तो n3 में जो भी वैल्यू है वो हमें यहाँ पे लिखनी होगी। तो वो लिखने के लिए हमें यहाँ पे %f लिखना पड़ेगा, और कितने डेसिमल पॉइंट तक लेना है उसकी वैल्यू, तो हम यहाँ पर .2f is the largest number. Okay, so f for floating value, 0.2 for only 2 decimal shown, and %d percent operator used for n3 variable. तो n3 में जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पे आएगा, फ्लोट टाइप में वो टाइप करेगा, डिस्प्ले करेगा और 2 डेसिमल पॉइंट में शो करेगा। सो वी राइट हियर 0.2 is the largest number. वो n3 नंबर स्क्रीन पे देखेगा and is the largest number करके स्क्रीन पे मैसेज आएगा, that is our output. In this way we find the greatest of 3 numbers using if else statement by using the AND operator और logical operator. तो हमने यहाँ पे AND operator देख लिया, और logical operators कौन से थे हमारे, AND operator का, OR operator का और NOT operator का। For given programs we just use the AND operator. Okay, so in this way we check the two expression, two constant or two variables by using the AND operator. Okay, now we will see the second operator, which is we want to study here in experiment number 6, that is the conditional operator. So what is conditional operator? So conditional operator, it is a ternary operator. Ternary operator means for these operators we require the 2 operands. 3 values हमें यहाँ पे ये operators के लिए लगती है। 3 operands. 3 operands means 3 values. First value, second value and third value. By using these 3 values, you process the conditional operator. ओके, जैसे कि हमने लास्ट ऑपरेटर देखा था इस एक्सपेरिमेंट के लिए एंड ऑपरेटर, और एंड ऑपरेटर वी रिक्वायर द 2 ऑपरेंड्स. ऑपरेंड मींस 2 एक्सप्रेशंस, 2 वेरिएबल्स और 2 कांस्टेंट. तो ये दोनों के बीच में हमने क्या ऑपरेटर डाला हुआ था, एंड ऑपरेटर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है. सो इट इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन and this is the second expression. In between these 2 expressions we write here AND operator. Okay, in this way this is the binary operator. Binary means 2 operands. So in this way we seen here the conditional operator. For conditional operators we require the 3 operands. First operand, that is first expression, second operand, that is second expression, and third operand, that is third expression. This is the syntax of conditional operator, how we will write in our C program. So आपको ये syntax याद रखना है. syntax आपको summarize remember करके रखना है, आपके mind में set करके रखना है.
what is the syntax, how we will write program. Once we know the syntax, then we can easily write any program by using conditional operator. Okay, this is project. It is sometimes it is called as the ternary operator, and since it is one the expression as an operand and it is represented as a question mark and डबल कोलन, तो ये एक्सप्रेशन ये ऑपरेटर लिखने के लिए हमें दो ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं, दैट इज द क्वेश्चन मार्क सिंबल एंड कोलन सिंबल. बाय यूजिंग दिस टू सिंबल वी राइट द कंडीशनल ऑपरेटर. तो कंडीशनल ऑपरेटर कैसे लिखते हैं? वन expression 1 is true, then execute expression 2, and expression 1 is false, then we execute the expression 3. Okay, तो यहाँ पे हमने तीन एक्सप्रेशन लिखे 1 2 3. 1 अगर ट्रू होगा तो हमने एक्सप्रेशन 1 डिस्प्ले किया, ए कोलन के ए वाले साइड का एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट किया. When expression 1 is false, then we execute the expression 3. Okay, this is the proper syntax of conditional operator, and here expression 1 is first evaluated. expression 1 execute हो जाएगा, evaluate हो जाएगा. It is a true, then the value returns will be expression 2. अगर ये execute हो रहा है और ये true आ रहा है, मतलब condition satisfied हो रहा है, then expression 2 is executed, return the value. If false, expression 1 is the false, then execute the expression 3. Okay, तो हमने यहाँ पे क्या सीखा अभी? कंडीशनल ऑपरेटर कैसे लिखना है? एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क. When it is a true, then execute expression 2. When expression 1 is a false, then execute the this part from the colon. colon के a वाले साइड का पार्ट हमें एग्जीक्यूट करना है. That's expression 3. Okay. First we see one example for your understanding. We will take a variable having value 10 and b variable having value 2. Now these two variables value we process in a conditional operator. So we write here expression a greater than b question mark. Our expression is a greater than b question mark. If it is a true, then execute the first statement, that is return the first statement, that is a. If it is a false, the expression is a false, then we execute the b statement, b value, return the b value and assign to the by using this equal to operator. ये ऑपरेटर जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा, जो भी रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट हम किसको असाइन कर रहे हैं? ये yes वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? a की वैल्यू 10 है, तो 10 ग्रेटर देन 2 और b की वैल्यू क्या है? 2 है. तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आया? 10 ग्रेटर देन 2. तो अब ये एक्सप्रेशन क्या है? फॉल्स है. फॉल्स है मतलब ये कौन सा वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करेगा? ये कोलन के ये साइड वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करेगा. दैट इज एक्सप्रेशन नंबर 3 विल बी एग्जीक्यूटेड. इट मींस वी रिटर्न द b एंड b वैल्यू रिटर्न करेगा. b की वैल्यू कितनी है? 2 है और ये 2 वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी? yes को असाइन हो जाएगी. ओके, तो ये yes वैल्यू अभी हमें जो भी रिजल्ट आया है बाय यूजिंग दिस कंडीशनल ऑपरेटर, व्हाटएवर रिजल्ट वी गेट हियर, दैट रिजल्ट विल बी असाइन्ड टू द yes वेरिएबल एंड दैट yes विल बी डिस्प्लेड हियर बाय यूजिंग %d. so value is %d because yes is a integer type of variable, so we use here %d and display the yes. तो yes हमें क्या डिस्प्ले हो जाएगा? yes क्या डिस्प्ले हो जाएगा? 10 और 2. अब ये देख लीजिए, पहला ये कंडीशन ट्रू है क्या फॉल्स है? ये की वैल्यू क्या थी? 10. b की वैल्यू क्या थी? 2. तो 10 इज अ ग्रेटर देन 2, तो ये कंडीशन क्या है? ट्रू है. मतलब 10 it is a greater than 2. ये कंडीशन ट्रू है. ट्रू है मतलब वो क्या रिटर्न करेगा? ये वैल्यू रिटर्न करेगा, एक्सप्रेशन 2 रिटर्न करेगा. और ये वैल्यू 10 वैल्यू हमें किसको असाइन किया है? बाय यूजिंग इक्वल टू ऑपरेटर.
assign age value to yes वेरिएबल और yes यहाँ पे डिस्प्ले किया। इसका मतलब हमारा जो आउटपुट आएगा ये 3 लाइन का वो क्या आने वाला है, आउटपुट इज वैल्यू इज 10 करके रिजल्ट हमारा आएगा। ओके, अगर यहाँ पे मान लो b की वैल्यू 20 होगी, अगर b की वैल्यू 20 है इसका मतलब ये ग्रेटर देन b, ये कंडीशन फॉल्स होगा। a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है और 10 ग्रेटर देन 20, ये तो फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे एक्सप्रेशन नंबर 3 एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये b वैल्यू असाइन हो जाएगी yes वेरिएबल को, मतलब 20 असाइन टू yes and yes will be displayed here. In this way we studied here the conditional operator. Now we will see our experiment or practical programs, that is find the greatest of 3 numbers using conditional operator. तो आपको ग्रेटेस्ट फाइंड करना है और कंडीशनल ऑपरेटर यूज करके लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे, वो पहले हम उसका एल्गोरिथम लिखेंगे। बाय आवर एक्सपेरिमेंट वी विल राइट द एल्गोरिथम। फर्स्ट स्टार्ट किया, देन डिक्लेयर द 3 वेरिएबल्स। हमें 3 वेरिएबल में से ग्रेटर नंबर फाइंड करना है, तो हमने ए बी सी 3 वेरिएबल्स लिखे। रीड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, वो ए बी सी की वैल्यू रीड की जो भी है, एंड प्रोसेस द कंडीशनल ऑपरेटर टू फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रॉम 3। ये तीनों में से कौन सा ग्रेटर है वो हमें फाइंड करना है, तो हमने उसे प्रोसेस किया। तो प्रोसेस करने के लिए हमें फॉर्मूला लिखना है, एक्सप्रेशन लिखना है। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ये इज ग्रेटर देन p, ये जो है वो ग्रेटर देन p है कि नहीं। इफ एल्स, तो हमें ये और c के साथ कंपेयर भी करना पड़ेगा, मतलब ये जो है वो b से तो ग्रेटर होना ही चाहिए, एज वेल एज इट इज ग्रेटर देन c ऑल्सो, देन a इज ग्रेटर, तो ये ग्रेटर होगा, अदरवाइज c ग्रेटर होगा। ठीक है, एंड वी विल एग्जीक्यूट द सेकेंड स्टेटमेंट, b ग्रेटर देन c। अगर ये वाला कंडीशन ट्रू है तो b ग्रेटर देन c होगा, अगर b ग्रेटर है तो b डिस्प्ले करेंगे, अदरवाइज c ग्रेटर है यहाँ पे तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, दैट इज द कंडीशनल ऑपरेटर, एंड रिटर्न वैल्यू फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन असाइन टू द y वेरिएबल। जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम देखा था, ये वाला प्रोग्राम, टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स यूज करके हमने यहाँ पे ग्रेटर नंबर फाइंड किया, तो हमने यहाँ पे क्या क्या लिखना पड़ा, फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकेंड एक्सप्रेशन, थर्ड एक्सप्रेशन, फोर्थ एक्सप्रेशन, फिफ्थ, 6, ये 6 कंडीशन लिखना पड़ा। और हमने यहाँ पे ये n1 ग्रेटर है, n2 ग्रेटर है, n3 ग्रेटर है, ये फाइंड किया using if else operator and logical operator. We will find the greatest from 3 numbers. Now we doing the same thing, but operator was changed. और ऑपरेटर कौन सा है, कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर का एक कंडीशनल ऑपरेटर कैसे लिखते हैं, या ऐसे लिखते हैं, if expression 1 is a true, then execute expression 2, expression 1 is a false, then execute the expression 3। अगर ये आपको सिंटैक्स पता है तो आप ये प्रोग्राम भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे पहला कंडीशन लिखा है a is greater than b। अगर ये ट्रू है, मान लो कि a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है और c की वैल्यू 30 है, ये is greater than b। अगर a greater than b है तो a ग्रेटर है, तो पहला एक्सप्रेशन कौन सा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला, a इज अ ग्रेटर। तो हमें यहाँ पे लिखा a इज ग्रेटर देन c है क्या नहीं, ये देखिए। तो ये वाला कंडीशनल, अगेन वी यूज द कंडीशनल ऑपरेटर, मींस वी यूज हियर कंडीशनल ऑपरेटर विद इन अ कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर और एक कंडीशनल ऑपरेटर लिखा,
हमें और एक कंडीशन चेक करना है, दैट इज ए इज ग्रेटर देन सी। अगर ए ग्रेटर देन सी है क्या नहीं ये भी देखना है। इफ इट इज यस, इफ इट इज ट्रू, देन ओनली वी से ए इज ग्रेटर, दैट इज फर्स्ट एक्सप्रेशन। ओके, तो ये हमारा यूज हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब सी ग्रेटर है, तो हमने यहाँ पे सी डिस्प्ले किया। ओके, एंड दिस एक्सप्रेशन इज अ फॉल्स। अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तो हमने यहाँ पे लिखा b इज ग्रेटर देन c होगा, तो ये वाला कंडीशन लिखा b इज ग्रेटर देन c क्वेश्चन मार्क। तो ये कंडीशन ट्रू है। अगर b की वैल्यू ग्रेटर है c से तो हम b डिस्प्ले करेंगे, अदरवाइज c डिस्प्ले करेंगे। मतलब इनमें से ये पूरा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होने के बाद हमें कौन से भी एक वैल्यू मिलेगी, इट में बी a, इट में बी b और इट में बी c। ये तीनों में से कौन सी भी एक वैल्यू हो सकती है, एंड दैट वैल्यू विल असाइन टू द y एंड डिस्प्ले y इज द ग्रेटेस्ट नंबर। दिस इज द एल्गोरिथम। एंड फ्लो चार्ट कैसे होगा, जैसे कि हमने डिक्लेरेशन के लिए रेक्टेंगल यूज करते हैं, रीड करने के लिए, आउटपुट लिखने के लिए हम पैलिंड्रोम यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे रीड ABC लिखा, पैलिंड्रोम डिक्लेयर करने के लिए ABC यूज किया, प्रोसेस करने के लिए हमने रेक्टेंगल यूज किया। तो हमने ये प्रोसेस किया, डिक्लेयर कर दिया। नाउ हियर फॉर्मूला प्रोसेस किया, फर्स्ट कंडीशन इज अ ट्रू, देन एग्जीक्यूट दिस वन। ओके, सेकंड कंडीशन ट्रू, इफ इट इज फॉल्स होगा तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, b इज ग्रेटर देन c वाला। तो हमने यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये कंडीशनल एक्सप्रेशन चेक करेंगे। ये एक्सप्रेशन फॉल्स होगा, देन दिस वाला कंडीशनल एक्सप्रेशन चेक करेंगे। और ये दोनों एक्सप्रेशन चेक करके यहाँ पे 3 टाइम्स वी यूज हियर कंडीशनल ऑपरेटर। हमने यहाँ पे 3 टाइम्स कंडीशनल ऑपरेटर यूज किया है। फर्स्ट कंडीशनल ऑपरेटर ए ग्रेटर देन बी, ये ग्रेटर देन बी है कि नहीं ये चेक किया। अगर ये ग्रेटर है तो हमें ए और सी के साथ भी कंपेयर करना है, तो यहाँ पे लिखा है ए ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन सी। इफ इट इज ट्रू देन ये डिस्प्ले किया ग्रेटर करके, और ये वैल्यू y को असाइन हो जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो c ग्रेटर है, तो c वैल्यू ये y को असाइन हो जाएगी। ठीक है, और ये फर्स्ट एक्सप्रेशन ही फॉल्स होगा, तो ये सेकेंड कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, मतलब b ग्रेटर देन c। b a के साथ तो कंपेयर किया, ग्रेटर नहीं है, तो b हमें और c के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा b ग्रेटर देन c। ये है क्या, अगर b ग्रेटर देन c है तो फर्स्ट एक्सप्रेशन दैट इज b एग्जीक्यूट किया और असाइन टू द y को असाइन किया, एंड इफ इट इज फॉल्स देन c असाइन टू द y को असाइन किया। इन दिस वे वी राइट द कंडीशनल ऑपरेटर, और y में जो भी वैल्यू आई है वो y की वैल्यू हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, दैट इज प्रिंट y is the greatest number. In this way we write the pictorial representation, graphical representation, symbolic representation of given problem, that is a flowchart, and a step-by-step procedure of given problem, that is algorithm. In this way we studied the algorithm and flowchart. Now we will see the program. अभी प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिक्लेयर ऑल द हेडर फाइल्स, स्टार्ट वाइड मेन, डिक्लेयर द वेरिएबल abcd। यहाँ पे d के जगह पे ये क्या वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे आउटपुट वेरिएबल क्या लिखा है y, तो यहाँ पे abcd की जगह पे यहाँ पे y वेरिएबल होना चाहिए। ओके, तो abcy ये डिक्लेयर किए वेरिएबल। एंटर द वैल्यू फॉर abc की वैल्यू एंटर करना है, और वो स्कैन करके हमें abc के वेरिएबल में सेव करना है। तो हमने यहाँ पे abc की वैल्यू सेव की। ओके, तो abc की वैल्यू सेव करने के बाद अभी हमें वैल्यू मिलने के बाद हमें कंडीशन प्रोसेस करना है। तो हमने यहाँ पे प्रोसेस किया, फर्स्ट कंडीशन इज अ ट्रू, क्वेश्चन मार्क। इफ इट इज अ ट्रू देन एग्जीक्यूट
द फर्स्ट एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो कहां तक है, ये कॉलम जो दिख रहा है ये कॉलम तक हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है। When first condition is true, then execute the this part, that is this conditional operator. First expression is a true, A is greater than B is a true, then again we will check the condition A greater than C है कि नहीं वो भी देखना है। अगर ये A greater than C है तो A greater होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो C greater होगा। ओके, दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन। और ये फर्स्ट एक्सप्रेशन मतलब ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट, तो ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट कब एग्जीक्यूट किया, ध्यान से सुनिएगा, ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट मतलब फर्स्ट एक्सप्रेशन है। और ये फर्स्ट एक्सप्रेशन कब चेक करेंगे, व्हेन दिस कंडीशन इज ट्रू। ये कंडीशन ट्रू होगा तो हमने यहां से लेके यहां तक ये वाला ब्रैकेट एग्जीक्यूट किया। व्हेन दिस कंडीशन इज फॉल्स, अगर ये कंडीशन ही फॉल्स होगा तो हम यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज ये वाला एक्सप्रेशन। यहाँ ये ब्रैकेट से लेके ये ब्रैकेट तक जो भी एक्सप्रेशन है वो हम एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है मतलब ये ग्रेटर है कि नहीं वो हमें चेक करना है। तो हमने पहले ये बी से कंपेयर किया, देन ए कंपेयर विथ सी, और ये ट्रू है तो ये डिस्प्ले किया और असाइन टू द वाई किया। अगर ये ट्रू नहीं तो सी कंपेयर किया और सी डिस्प्ले किया, वाई को असाइन करके डिस्प्ले किया। ओके, व्हेन दिस फर्स्ट कंडीशन मतलब ये ग्रेटर देन बी इट इज अ फॉल्स, अगर ये फॉल्स है तो ये कोलन पे ये वाली साइड एग्जीक्यूट हो जाएगी। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी ग्रेटर है ये से, तो हमें और भी चेक करना है कि ग्रेटर देन सी है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे लिखा बी ग्रेटर देन सी, इफ इट इज ट्रू देन ओनली B is a greater and assigned to the y variable. Okay, and if condition is a false, then C is a greater and assigned to the y variable. In this way, we will get the values of greatest value from the three number. और जो भी वैल्यू आई है वो हम यहाँ पे y की डिस्प्ले करेंगे। Okay, now we'll see the output of this program. When we entered values of ABC is a 6, 8, 7 and the output greatest number is a B and output 8 is the greatest, ऐसे करके मैसेज स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो ये फाइंड करने के लिए हमें ये कोड लिखना जरूरी है। तो हम एक कंडीशनल ऑपरेटर यूज करके ये कोड लिख सकते हैं। ये कंडीशनल ऑपरेटर यूज करके हमने ये ग्रेटेस्ट 3 नंबर फाइंड किए। यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके हमने ये ग्रेटेस्ट 3 नंबर फाइंड किए। सेम इनपुट आउटपुट होगा। अभी ये होने के बाद हम देखते हैं फाइंड गिवन कैरेक्टर इज वोवल्स। गिवन कैरेक्टर जो है वो वोवल्स है नहीं है वो देखना है। वोवल्स मीन्स व्यंजन, व्यंजन मीन्स ए ई आई ओ यू, ये वाले व्यंजन। और कैपिटल में कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ और कैपिटल यू, दीज आर द वोवल्स। ओके, वोवल्स मीन्स व्यंजन। तो ये वोवल्स है, एंटर्ड कैरेक्टर वोवल्स है नहीं है, और ये सिंबल है, नंबर है, ये हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट इसका हम एल्गोरिथम फ्लो चार्ट देख लेते हैं, देन वी सी द एल्गोरिथम, देन विल सी द प्रोग्राम। तो फर्स्ट वी रीड द कैरेक्टर, एक कैरेक्टर रीड किया यहाँ पे। अगर वो मान लो कैरेक्टर सिंबल है, नंबर है और कैरेक्टर है, जो भी है वो CH में आ चुका है। अभी हमें पहले ये चेक करना है कि इट इज अ कैरेक्टर और एनी अदर नंबर और सिंबल है, वो चेक करना है, वो कंपेयर करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा इफ CH इज अ ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल n। ओके, मतलब CH जो है वो A से स्टार्ट होगा, इक्वल टू A, स्मॉल a से स्टार्ट होगा और ग्रेटर देन एंड। तो हमने यहाँ पे दूसरी कंडीशन यूज की, लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया एंड
CH लेस देन इक्वल टू Z, स्मॉल z है कि नहीं वो देखना है। इफ इट इज अ ट्रू, मतलब हमने जो भी कैरेक्टर एंटर करेंगे, CH की वैल्यू एंटर करेंगे, इट इज स्मॉल लेटर A टू स्मॉल लेटर Z, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम आगे जा सकते हैं, जाएंगे। और अगर वो कैपिटल वो कैरेक्टर है तो और हमें ये भी कंडीशन चेक करनी है, और मतलब दोनों में से एक कौन सा भी सही होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे और ऑपरेटर डाला हुआ है, इट इज और ऑपरेटर। तो CH ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल A एंड CH लेस देन इक्वल टू Z। तो A से स्टार्ट करेंगे और Z इक्वल टू Z तक हम वो कंपेयर करेंगे। इनमें से स्मॉल a टू स्मॉल z और कैपिटल A टू कैपिटल Z, इनमें से अगर कौन सा भी एक कैरेक्टर होगा तो हम वो चेक करेंगे इट इज वोवेल्स और नॉट, है नहीं है। वो चेक करने के लिए हमने यहाँ पे दूसरा कंडीशन लिखा है। ओके, इफ इट इज दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट दिस कंडीशन। If this expression is a false, then we will write here no vowels and no character. इसका मतलब क्या है? स्मॉल लेटर में A टू Z नहीं है, कैपिटल लेटर में A टू Z नहीं है। इसका मतलब एंटर किया हुआ नंबर, एंटर किया हुआ वैल्यू इट में बी डिफरेंट, दैट इज 1 हो सकती है, एनी सिंबल हो सकता है, एनी वर्ड हो सकता है, लेकिन वो कैरेक्टर नहीं है। इसका मतलब वो कैरेक्टर वोवेल्स है नहीं है, वो चेक करने की जरूरत नहीं है। When this condition is false, then we will directly display here no vowels, no character, and the end of the program. So cursor is here and end. Okay. If this condition is true, मतलब एंटर किया हुआ कैरेक्टर कौन सा भी एक कैरेक्टर है, तो अभी वो हमें चेक करना है कौन सा भी कैरेक्टर हमें शो करना नहीं है। ओनली these 5 characters, that is a small a, small e, small I, small o, small u and capital A, capital E, capital I, O, U, इनमें से कौन सा भी एक कैरेक्टर होता है तो हम कहेंगे the entire character is a vowels, otherwise not a vowels। ऐसे हम यहाँ पे शो करना है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी CH में जो भी वैल्यू है CH इज इक्वल टू स्मॉल a है और कैपिटल A है, और ये नहीं तो स्मॉल e है, ये नहीं तो स्मॉल e होगा। अगर स्मॉल e नहीं है तो CH इज इक्वल टू स्मॉल I होगा, स्मॉल I नहीं तो कैपिटल I होगा, और CH इज इक्वल टू कैपिटल I नहीं तो स्मॉल I होगा, वो होगा। अगर स्मॉल O भी नहीं है तो कैपिटल O होगा, ये भी नहीं है तो स्मॉल u होगा, ये भी नहीं है तो स्मॉल u होगा, ये भी नहीं है। इसका मतलब ये कैरेक्टर जो एंटर किया है वो कैपिटल A E O I U और स्मॉल लेटर A E I O U, इनमें से कौन सा भी नहीं है। इसका मतलब नॉट वोवेल्स, ऐसे करके हम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर इनमें से कौन सा भी एक है तो हम क्या करेंगे, when it is a condition is true, तो हम यहाँ पे कैरेक्टर इज वोवेल्स करके डिस्प्ले करेंगे। और यहाँ पे और ऑपरेटर यूज किया है, जैसे कि हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में एंड ऑपरेटर यूज किया था। बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन ट्रू, और यहाँ पे क्या है और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर मतलब क्या है, लॉजिकल और ऑपरेटर है। तो हमने यहाँ पे 10 एक्सप्रेशन चेक किए हैं, और 10 एक्सप्रेशन में कौन सा भी एक एक्सप्रेशन अगर ट्रू होता है, एनी वन इज अ ट्रू, देन वी कंसिडर दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू। ये एक्सप्रेशन ट्रू है करके हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, सो इन दिस वे वी सीन द गिवन प्रोग्राम, गिवन कैरेक्टर इज वोवेल्स और नॉट। ओके, तो इसका अभी हम देख लेते हैं एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम कैसे है, स्टार्ट करो, रीड करो वैल्यू, चेक करो वेदर इट इज अ कैरेक्टर और एनी अदर सिंबल,
और स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग है, मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है। और एनी सिंबल मतलब कीबोर्ड में से कौन सा भी सिंबल हो सकता है, एस्टेरिस्क सिंबल है, एंड सिंबल है, स्टार आपने दबाया है, कौन सा ब्रैकेट प्रेस किया हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, दैट इज सिंबल और स्ट्रिंग। और एनी कैरेक्टर, और कौन सा भी कैरेक्टर दबाया हुआ, तो पहले हमें वो चेक करना पड़ेगा इफ इट इज एंटर्ड कैरेक्टर इज अ कैरेक्टर और एनी अदर सिंबल और स्ट्रिंग। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये कंडीशन लिखना जरूरी है। तो हमने यहाँ पे लिखा अगर ch ग्रेटर देन स्मॉल ए की वैल्यू स्मॉल ए से ch की वैल्यू स्मॉल ए एंड स्मॉल जेड इन बिटवीन स्मॉल ए टू स्मॉल जेड होगी, दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो वो कैरेक्टर है। और अगर ये नहीं है, कैपिटल में कुछ होगा, तो हमें और ch ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए एंड ch लेस देन इक्वल टू कैपिटल जेड होगी, तो वो एंटर ch वैल्यू इज अ कैरेक्टर है। अगर नहीं है, if it is a true then we'll go to step number 6। अगर ये ट्रू है तो हम डायरेक्ट चेक करने के लिए जाएंगे, ये वाला स्टेप करने के लिए जाएंगे, वो एंटर्ड कैरेक्टर इनमें से कौन सा है, कैपिटल ये है, स्मॉल ये है, आई है, ये चेक करने के लिए हम डायरेक्ट स्टेप नंबर 6 में जाएंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो हम क्या करेंगे, इफ इट फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स होगा, देन प्रिंट नॉट ए वोवल्स एंड नॉट अ कैरेक्टर। वोवल्स भी नहीं है और कैरेक्टर भी नहीं है, ये हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। ठीक है। अगर 6 नंबर स्टेप आती है तो 6 नंबर स्टेप में हम कौन सा कैरेक्टर वोवल है वो फाइंड करेंगे। इफ इट इज वोवल्स देन प्रिंट इफ इट इज ट्रू, इनमें से कौन सी भी एक कंडीशन एक्सप्रेशन अगर ट्रू होता है तो हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट गिवन कैरेक्टर इज वोवल, कैरेक्टर है वोवल है, तो हमने वहां पे डिस्प्ले किया। देन स्टेप नंबर 6, कंडीशन इज अ फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होता है, देन डिस्प्ले कैरेक्टर इज नॉट वोवल। ये कंडीशन 6 नंबर की कंडीशन अगर फॉल्स है तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप नंबर 6 इज फॉल्स, देन डिस्प्ले कैरेक्टर इज नॉट वोवल। जैसे कि यहाँ पर ये वाला स्टेप है 6 नंबर की, अगर ये ट्रू है तो कैरेक्टर है वोवल है, और ये फॉल्स है तो हमने यहाँ पे लिखा कैरेक्टर इज नॉट वोवल। तो ये वाली स्टेप्स यहाँ पे लिखा, स्टेप नंबर 6 कंडीशन इज फॉल्स, देन नॉट वोवल, ये मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले किया, एंड देन स्टॉप, लास्ट स्टेप इज स्टॉप। In this way we seen here the algorithm of character is vowel or not। उसका algorithm हमने अभी देख लिया। अभी उसका प्रोग्राम देखना है तो आपको पता है कि प्रोग्राम कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे इंक्लूड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लूड ऑल द हेडर फाइल्स, दैट इज वाइड मेन वाइड मेन। First of all declare all the include files, that is stdio.conio.h header files, then void main start of the program and declare the character ch, read the value of ch, so enter the character and scan %d and ch में वो वैल्यू आ चुकी है जो हमने कीबोर्ड से एंटर की है, तो वो वैल्यू कैरेक्टर हो सकती है, सिंबल हो सकते हैं, और कौन सी भी वैल्यू हो सकती है, जो भी है वो हमें चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ सिंगल कैरेक्टर है कि नहीं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशन लिखा इफ अगर ch ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए से लेके ग्रेटर देन ch लेस देन इक्वल टू z, ये से लेके z तक कौन सी भी वैल्यू है नहीं है वो देखेंगे, और ch ग्रेटर देन कैपिटल A एंड ch लेस देन इक्वल टू कैपिटल Z है क्या नहीं, ये हमने देख लिया। अगर इनमें से ट्रू है तो हम यहाँ पर आएंगे, ये ch इक्वल्स टू A, वोवल्स का जो 10 कंडीशन था वो हमने यहाँ पे चेक किया,
स्मॉल लेटर है, कैपिटल लेटर है, स्मॉल ई है, कैपिटल ई है, स्मॉल आई है, और स्मॉल आई होगा नहीं तो स्मॉल कैपिटल आई होगा, कैपिटल ओ नहीं तो स्मॉल ओ होगा, कैपिटल यू नहीं तो स्मॉल यू होगा। ये इनमें से 10 कंडीशन में से कौन सी तो ये कंडीशन ट्रू होगी। और लिखा है any one of them is true, then this expression is a true and we display print C is a vowels। तो परसेंट C is a vowels मतलब C मतलब कैरेक्टर है, तो ये परसेंट C वैल्यू जो है वो CH में जो भी वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी। मान लो CH में अगर ये वैल्यू है तो यहाँ पे मैसेज क्या आएगा, परसेंट C मतलब ये CH वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो CH में अगर ये वैल्यू है तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा E is a vowels, E vowels है, व्यंजन है। else ये नहीं है तो else पार्ट में हम लिखते हैं not a vowels, परसेंट C is not a vowels। CH में जो भी वैल्यू है वो इन 10 अक्षरों में से कोई सी भी नहीं है, इसका मतलब वो vowels नहीं है। तो हमने यहाँ पे प्रिंट किया is not a vowels and else में लिख दिया प्रिंट किया परसेंट C is not a vowels। ओके, तो ये इसी तरह हमने vowels है नहीं है डिस्प्ले किया। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा मतलब हम ये कंडीशन चेक करने के लिए अंदर जाने वाले नहीं है, तो हम डायरेक्टली डिस्प्ले करेंगे नॉट ए vowels एंड नॉट ए कैरेक्टर। कैरेक्टर भी नहीं है और vowels भी नहीं है, ये डिस्प्ले करना है। when this condition is false, फॉल्स होगी तो हम ये वाला एल्स में जाएंगे। तो ये वाला एल्स जो है किसके लिए है, ये if के लिए ये वाला एल्स है। तो प्रिंट हियर परसेंट C is not a vowel और not a character और C डिस्प्ले करेंगे गेट C। सो इसी तरह आज हमने ये वॉवल्स का प्रोग्राम देखा। अभी यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, मान लो एंटर कैरेक्टर, आपने क्या किया ये वाला स्टेटमेंट जो है एंटर कैरेक्टर वो स्क्रीन पे डिस्प्ले किया एंड आपने ए एंटर किया, कैपिटल ए एंटर किया, कैपिटल ए एंटर किया तो ए इज अ वॉवल्स, कैपिटल ए वॉवल्स है तो ये मैसेज आएगा ये इज अ वॉवल। परसेंट C मतलब ये CH और CH की वैल्यू ये है तो ये इज अ वॉवल्स करके ये मैसेज स्क्रीन पे दिखेगा। सेकंड आउटपुट देखते हैं, अगर आपने एंटर किया था स्मॉल ए तो स्मॉल ए इसमें से यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ये ट्रू हो रही है मतलब ये परसेंट C इज अ वॉवल्स। तो CH में अभी क्या वैल्यू आई थी, एंटर की थी हमने यहाँ पे स्मॉल लेटर ए, तो स्मॉल लेटर ए जो है वो वॉवल्स है तो यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे ए इज अ वॉवल्स। ओके, अगर आपने ऐसा कुछ किया 3 कैरेक्टर लिखे कैरेक्टर JH तो CH में क्या वैल्यू आई JH ये वैल्यू आई और ये वैल्यू यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगी। तो फॉल्स होगी मतलब वो इस एल्स बॉर्ड में वो जाने वाला नहीं है, वो डायरेक्ट इसके फॉल्स स्टेटमेंट में। तो इसका फॉल्स स्टेटमेंट कहाँ पर है, एल्स पार्ट में। तो एल्स पार्ट में क्या लिखा है, परसेंट C इज नॉट ए वॉवल्स और नॉट ए कैरेक्टर। तो ये वाला मैसेज जो है वो स्क्रीन पे दिखेगा नॉट ए वॉवल्स और नॉट ए कैरेक्टर। तो यहाँ पे और नॉट ए कैरेक्टर ये भी मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ये ऐसा कुछ देखना है, कुछ सिंबल एंटर किया है, एंटर ए कैरेक्टर और सिंबल एंटर किया तो सिंबल इज नॉट अ वॉवल्स एंड और नॉट अ कैरेक्टर, वॉवल्स भी नहीं है और कैरेक्टर भी नहीं है। ओके, तो इसी तरह आप जो हमारा सेकंड प्रोग्राम था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वो कुछ क्वेश्चंस आए हैं प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन था राइट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, हैश इंक्लूड इंटीजर मेन x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है और z इज इक्वल टू हमने यहाँ पे कंडीशन लिखा है y प्लस प्लस। y प्लस प्लस मतलब क्या है, y की वैल्यू 0 थी
और हमने 0 इंक्रीज किया है 1 से, मतलब क्या हुआ यहाँ पे y की वैल्यू 1 हुई। ठीक है, ये जो है ये कंडीशन चेक किया, एक वैल्यू इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे आया है y इज इक्वल टू 1 एंड x, यहाँ पर y वेरिएबल था, y इज इक्वल टू 1 एंड x, ये ट्रू है तो ये वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे y प्लस प्लस होने के बाद y की वैल्यू क्या आई है 1 आई, तो 1 आई मतलब यहाँ पर हमारी इनिशियल y की वैल्यू क्या है 0, तो ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। फॉल्स हो गया मतलब क्या हो जाएगा, कोलन के इस साइड वाला, कोलन के लेफ्ट साइड वाली वैल्यू जो है वो एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन फर्स्ट है, ये वाला एक्सप्रेशन फर्स्ट है और ये वाला एक्सप्रेशन सेकंड है। तो ये कंडीशन फॉल्स है इसलिए ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन सेकंड वाला एक्सप्रेशन जो है वो एग्जीक्यूट होगा और 0 वैल्यू रिटर्न होके ये z को असाइन हो जाएगी। और जब हम ये प्रोग्राम में प्रिंट किया है %d/m/z, तो z प्रिंट किया है तो z में क्या वैल्यू आई 0, तो 0 आउटपुट आएगा, 0 डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में, इंटरव्यू में, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो आपको ये एग्जीक्यूशन कैसे हुआ है, इनिशियलाइजेशन कैसे हुआ है वो देख के उसका आउटपुट, करंट आउटपुट आपको बताना है। दैट इज फर्स्ट वन। नाउ सेकंड, राइट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इसका प्रोग्राम का आउटपुट आपको दिखाना है। तो प्रोग्राम आउटपुट कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पे वाइड किया, प्रैक्टिकल रिलेटेड वाइड मेन प्रोग्राम स्टार्ट किया, k की वैल्यू 8 है, m की वैल्यू 7 है, इंटीजर z इज इक्वल टू k। हमने यहाँ पे ये कंडीशन लिखा है k लेस देन m, k की वैल्यू कितनी है 8 है, k की वैल्यू कितनी है 8 लेस देन m, 8 की वैल्यू, 8 वैल्यू हमने k को असाइन की और 7 वैल्यू m को असाइन की। और यहाँ पे कंडीशन क्या लिखा है k लेस देन m, मतलब 8 लेस देन m। तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है क्या ट्रू है, 8 लेस देन 7, k लेस देन 7, 8 लेस देन 7, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हुई। 8 लेस देन 7 तो नहीं है, 8 ग्रेटर है, तो ये कंडीशन क्या हुआ फॉल्स हुआ। फॉल्स हुआ मतलब ये वाला एक्सप्रेशन तो एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है, k प्लस प्लस वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है। तो कौन सा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा m प्लस प्लस, तो यहाँ पे m प्लस प्लस एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी है 7 है, तो हमने यहाँ पे 7 प्लस प्लस किया तो वो 8 हो जाएगा। लेकिन 8 होने के पहले हमने ये m किसको असाइन किया है, ये z को असाइन किया है। मतलब प्रिंट f, अगर हम z प्रिंट करते हैं तो z में कौन सी वैल्यू आई है बिफोर इनिशियलाइजेशन, वो इनिशियलाइजेशन फर्स्ट हुआ देन इंक्रीमेंट हुआ। ये हमारा m प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, 1 से इंक्रीज होती है वैल्यू। तो 7 का 8 होगा, लेकिन 8 के पहले, 8 होने के पहले ये m वैल्यू हमने ये z को असाइन की है और यहाँ पे z डिस्प्ले किया। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, ये z डिस्प्ले का आउटपुट क्या आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट आएगा 7। ओके, यहाँ पे 8 आना चाहिए था लेकिन 8 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, वो पहले असाइन होगा देन पोस्ट इंक्रीमेंट, बाद में उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो m की वैल्यू 7 थी, 7 z को असाइन हुआ, z डिस्प्ले किया 7। ओके, दैट इज द सेकेंड वन। एंड थर्ड, ये वाला दिया है एक्सप्रेशन प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन में, पॉइंट आउट द एरर फाइंड आउट करना है फॉलोइंग प्रोग्राम में। और यहाँ पे एक टैग नाम का एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 0 है
कोड नाम का एक वेरिएबल लिया है, उसकी वैल्यू 1 है, और कंडीशन लिखा है टैग इज इक्वल टू 0, टैग की वैल्यू 0 है क्या? यस, इट इज 0, तो वो इस एक्सप्रेशन में जाएगा। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में क्या लिखा है? कोड 1 लेस देन 1, कोड की वैल्यू कितनी है? 0, सॉरी 1, तो 1 लेस देन 1 है? नहीं है, लेस नहीं है, इक्वल है, क्योंकि कोड की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, इनिशियलाइज की है 1, तो यहाँ पे कंडीशन अगर देखते हैं 1 लेस देन 1, ये ऐसा कंडीशन आए, तो ये कंडीशन क्या है? फॉल्स है, मतलब 1 लेस देन 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 इक्वल टू 1 हो सकता है। अगर 1 इक्वल टू 1 होता, इक्वल यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह पे अगर इक्वल टू होता तो ये कंडीशन ट्रू होती, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोड 1 लेस देन 1, मतलब 1 लेस देन 1, दिस कंडीशन इज फॉल्स, देन विल एग्जीक्यूट दिस एक्सप्रेशन, तो ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन इस प्रोग्राम में कुछ एरर है, तो वो एरर कौन सा है? तो एरर आप देख सकते हो, जैसे कि हमारा एक्सप्रेशन था, सिंटैक्स था एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कोलन एंड एक्सप्रेशन सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पे कोलन मिसिंग है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर एक्सप्रेशन है दिस वन एक्सप्रेशन क्वेश्चन मार्क की जगह पे है एक्सप्रेशन 2, ये पूरा स्टेटमेंट एक्सप्रेशन 2 है, और कोलन चाहिए था लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, और एक्सप्रेशन 3 ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मिसिंग क्या है? एरर क्या है? एरर इज द कोलन ऑपरेटर, सो वी राइट हियर कोलन। तो यहाँ पे कोलन जब लिखोगे तो ये एरर रिमूव हो जाएगा और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये कंडीशन फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट होगा एक्सप्रेशन 3, और यहाँ पे हाई मैसेज जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, so this is the programs and this is the practical related questions. If any doubts and any query, then you ask me on my WhatsApp number and suggestion box. Ask question in comment box and my WhatsApp number. If any doubts queries आप पूछ सकते हो। अभी जो है टाइम हो चुका है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम इसके प्रोग्राम देखेंगे, मतलब प्रोग्राम कैसे किए हैं, क्या है, कैसे रन करना है। तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल वी विल सी द प्रोग्राम्स। नाउ फ्रॉम दिस सेशन वी विल सी द लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल ऑपरेटर, यह हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग हमने 2 प्रोग्राम भी किए हैं, प्रोग्राम आप अच्छे से याद रखिएगा, परफॉर्म करिएगा। नाउ थैंक यू वेरी मच, आई स्टॉप हियर।